हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के बारे में, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Right now from any part of the globe, sitting at your home, at your offices, you can purchase a land with us. So land is something, it's that kind of asset where, if you will see, बहुत पुराने जमानों में आप आज से आप 15-20 साल पहले देखते तो जमीन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता था लोगों की तरफ से। बहुत पहले के जमाने में बोला जाता था कि जमीन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा देगी, ऐसे कभी कुछ देगी नहीं। 2019 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आज 2024 है, ऑलमोस्ट वी हैव डन 7+ लॉन्चेस। हाय धर्म जी, वेलकम टू क्रैक ज्ञान। कैसे हो सर? गुड, हाउ आर यू अभिषेक? आई एम डूइंग गुड सर। आप थोड़ा मुझे बताएं सर, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के बारे में, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So, House of Abhinandan Lodha, if you want to give you the back context of it, we have started with the vision. We have one mission with vision as well. Okay. So, to begin with the journey, we always think as a company, we don't consider ourselves as a real estate developer. We always consider as a consumer tech brand. Okay. And our clear one statement is that we want to democratize land in such a way that every individual should purchase a land with its best capacity, and we have ensured that our process is so smooth. So our vision is very simple, that we want to tap not only with the country but across the country Indians who are there or NRI who wants to purchase a land, to ensure that the process and the flexibility in the system is made such a way that right now from any part of the globe, sitting at your home, at your offices, you can purchase a land with us. So when this journey started? So this we have started in the peak of COVID. Okay, so we have started is in 2019. Okay, where the idea just clicked on our founder, we can say Abhinandan Lodha. Correct. Okay, so if I will give you the background of it, so he has been into this industry since more than 35 years. Okay. If you have heard about Lodha brand. Correct. Okay, so we always say the man behind Lodha. Okay, the mind behind Lodha is Abhinandan sir itself. Okay. Right. So it's been 35 years of journey. So now Abhinandan Lodha sir, House of Abhinandan Lodha as a company has come up with different entity where we are purely into land-based project. Yeah. So the idea, if you will tell me that what exactly pumped it, so we always into the floor rise, high rise and all. Right. So land is something, it's that kind of asset where if you will see, बहुत पुराने जमानों में आप आज से आप 15-20 साल पहले देखते तो जमीन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता था लोगों की तरफ से। बट अगर आप देखोगे लास्ट 15 to 20 इयर्स की जर्नी, जहाँ पे लोगों ने लैंड पे इन्वेस्ट करना बहुत कम कर दिया था। देयर इज अ मल्टीपल रीजंस टू इट व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑब्वियसली, बट यस, जो जितना प्योर और जितना पावरफुल एसेट था, बोलें कहीं ना कहीं 15-20 सालों में वो खोते चला गया। पीपल यूज्ड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, in residential and commercial, but land is something which we give you highest returns also, and it's one of the safest investment you consider. So we wanted every household, every individual of the country should have in its portfolio investment of land as well. The House of Abhinandan Lodha, new generation land. What is this new generation land? So if you will see the history of it, हमेशा से land जो खरीदा जाता था वो it's a age group of 40, 45 plus, 35 plus, 40, 50 plus लोग land को खरीदते, अच्छा हम एक रिटायर होम बना लेंगे। But we always believe that young generation should also understand the value of it, okay, and how much returns and how much value we're going to add in the profile that land gives you, right? So we wanted our new generation also to come forward and have a look and have a perspective of getting a land portfolio in his in his asset deal, or we can say in his investment portfolio as well. Why it is so important to include land in your investment portfolio along with other investment? See, it's not to be very precise with you, it's not first time, or it's not it's not familiar, or it's not popular that land के बारे में किसको पता नहीं था. It was famous, but like I said in before also that बहुत 15-20 सालों में land का value, like I said, you ask me new generation समझने में, या what kind of value land will going to add, वो बहुत ही due to lack of education I will say, or due to lack of awareness I can say, लोगों ने invest करना बंद कर दिया था. If you will take a data of last 15 to 20 years, almost a new generation or almost every age group of people
have kept aside as a land investment, and then they move into residential, commercial. You can take some of the कि SIPs वो and कहते all. हैं ना कि आपके पास स्टॉक भी हो, गोल्ड भी हो, सब कुछ हो, लेकिन लैंड होना जरूरी है। Exactly. ऐसा क्यों है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लैंड? लैंड एक ऐसा एसेट है जो आपको कभी भी यू विल नेवर बी इन योर लॉस साइड, राइट? ओके, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको आगे जाके इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ रिटर्न्स ओनली। ठीक है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन विद द राइट सेट ऑफ पीपल, if you are invested with the right location, obviously it will give you a very good returns. And also अगर हम अगर हम रेसिडेंशियल टावर में फ्लैट में जाते हैं तो वो उनके एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल को डिजाइन करना पड़ता है। एक लैंड एक ऐसा एसेट है जहाँ पे हम अपने हिसाब से एक अपना खुद का घर बना सकते हैं, हम अपने फैमिली के नीड के हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में हम देखते थे, या फिर आज से 15-20 साल के उसमें देखते थे कि जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई करती थी। आप किसानों को पकड़ लीजिए, आप या फिर आप एक एक हायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जैसे लोगों को पकड़ लीजिए, हायर ट्रेडमार्क और बिजनेस ओनर को पकड़ लीजिए, तो बहुत ज्यादा वो लोग लैंड से बहुत अटैच थे, बट कहीं ना कहीं वो खोदा चला गया। आज के तारीख में हमारी खुद की जमीन रहना, उस पर हमारा खुद का एक विला डिजाइन करना और हमारे फैमिली के नीड और कंफर्ट के हिसाब से घर बनाना, देयर इज अनदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आल्सो, एंड आल्सो इट्स अ प्रेस्टीज आल्सो, राइट? दैट you have a land in your that's why portfolio. पुरानी कहावत भी है, the best investment on the earth is only earth. Only earth, exactly. That बहुत पहले के जमाने में बोला जाता था कि जमीन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा देगी, हमेशा आपसे कभी कुछ लेगी नहीं। करेक्ट। और हम हिंदुस्तानियों में और हमारे खास करके हमारे इस देश में तो जमीन की जितनी पूजा की जाती है और जमीन की जितनी अहमियत है वो हर इंडिविजुअल समझता है। बस हम उसी को, उस मिशन को आगे लेके जाके हर एक घर में, हर एक फैमिली में, उनके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक लैंड पार्सल हो, ऐसा हमारा विजन है, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। 2019 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आज 2024 है, ऑलमोस्ट वी हैव डन 7+ लॉन्चेस, ओके, अक्रॉस ऑल द लॉन्चेस। इफ यू सी माय डेटा, विद इन 6 to 8 वीक्स इतने डिमांड थे हमारे पास कंट्री की कि हमने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल द माय प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट 75+% सोल्ड आउट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 वीक्स। तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत थी, कहीं ना कहीं डिमांड बहुत था और ट्रस्ट ऑफ सप्लाई बहुत कम था। उस मिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अयोध्या में आपने एक टाउनशिप लॉन्च की, राइट, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस रहा। इन्वेस्टर्स इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी आपके पास आए, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, कैसी ये रही? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब भी अयोध्या की बात करता हूँ तो मैं जय श्री राम से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, एंड श्री राम जन्मभूमि। यस। और अयोध्या एक ऐसा हमारे लिए जर्नी थी, या फिर एक ऐसा, मैं उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखता हूँ, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा था जिन्हें लोगों तक लेके जाना हमारे अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात थी, ठीक है। ना ही कि हिंदुस्तान से, ऐसा आपने खुद बताया कि हमें आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज आया। तो जब हमें पता चला, बहुत सारे इश्यूज थे बैक हैंड में अयोध्या को लेके, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, बट जब हमें पता चला कि आज वहां पे राम मंदिर बनने जा रहा है, तो क्यों ना हम एक एक छोटा सा एक लैंड पार्सल हमारे हिंदुस्तानियों के लिए ऑफर कर सके, कि वहां पे वो आ सके, वहां पे वो रह सके, ठीक है। बहुत सालों से हिंदुस्तानियों का इंतजार था, ऑलमोस्ट 300+ ईयर्स का इंतजार था हमारा, जो खत्म हुआ। और ये हमारे आप, मैं अयोध्या के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही इमोशनल जर्नी है हमारी, और वो देश ने हमें बता भी दिया, द डे वी हैव स्टार्टेड, विद इन 9 days, ऐसा रियल स्टेट में हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ होगा, रियल स्टेट में मैं बोल रहा हूँ कि 9 days टू बी वेरी प्रिसाइज, हमने 9 दिन में उस लॉन्च को क्लोज कर दिया था, 9 days में। एंड बहुत मैं दुखद के साथ भी ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर्स को हम उनके डिमांड को फुलफिल भी नहीं कर पाए। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास EOI दे के भी हम उन्हें जमीन नहीं दे पाए, ड्यू टू लॉट ऑफ स्कैरसिटी, बट यस वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। आज हमारे पास और एक लैंड पार्सल आया है अयोध्या का, कनेक्टेड टू दैट, जो कि हमने फिर से लॉन्च किया है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द लॉन्च। किस तरह की टाउनशिप प्लान थी वहां पे? तो इट्स अ गेटेड सोसाइटी, ओके, जहाँ पे जिसके लिए हम जाने जाते हैं HOBL, टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल, ओके, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द पीपल। तो इट्स अ गेटेड सोसाइटी विद अ 5-star डेवलपमेंट, ओके। और पहली बार हिंदुस्तान में हमने एक ऐसे टाउनशिप को लाया जहाँ पे 5-star होटल द पार्ट ऑफ इट, ओके, यस। तो उनका नाम द लीला से हमारा एसोसिएशन है, तो द लीला वी गोइंग टू ज्वाइन हैंड्स, एंड ऑलरेडी द वर्क हैज बीन स्टार्टेड। So
Yes, तो ये आपके टाउनशिप में ही है ये? ये हमारे गेटेड टाउनशिप के अंदर ही हिस्सा है। और ये श्री राम मंदिर से कितना दूर है? श्री राम मंदिर से टू बी वेरी प्रिसाइज 7.2 किलोमीटर की दूरी पे है। पास ही है फिर तो। बहुत पास है सर। अगर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी में जाऊं तो 6 किलोमीटर का तक का जो लैंड पार्सल है उसमें तो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो ही नहीं डेवलपमेंट सकती। ही नहीं सकता। बिल्कुल सही और बात। आप जैसे ही उस सर्कल को क्रॉस करते हो आपको हमारा लैंड पार्सल दिख जाएगा। कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया अयोध्या में? अप्रिसिएशन का क्या चांसेस है? सी अप्रिसिएशन की स्टोरी मोर देन माय डेवलपमेंट अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, गवर्नमेंट का खुद का वहां पे प्लस 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो कि सारे हाईवेज, ठीक है, मेजर सिटीज ऑफ यूपीज और मेजर सिटीज ऑफ आउटसाइड द यूपीज आल्सो देयर विल बी अ 4 लेन ऑफ हाईवे व्हिच विल टू कनेक्ट अयोध्या। आज अयोध्या में आज से 5 साल या 7-8 साल पहले अगर आप देखते हो तो किसी ने उम्मीद नहीं किया थी कि एक एयरपोर्ट बन जाएगा, एक रेलवे स्टेशन ट्रैक कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे नए नए बस डेपो हो रहे हैं, मेजर सिटीज से यूपी के हाईवेज बन रहे हैं जो कि सिर्फ अयोध्या को कनेक्ट करेंगे। और ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया गवर्नमेंट को कि आपको पूरी जर्नी रामायण की, पूरी अयोध्या की जर्नी आपको उस तरीके से सिचुएटेड करते दिखेंगे अक्रॉस द कंट्री हर एक बेल्ट पे। तो सौभाग्य की बात है हमारी, हम अयोध्या जैसे लैंड पर हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा 3,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की प्लान करी है अयोध्या में। Exactly. वो किस तरह का प्लान है? It's purely on the इन्वेस्टमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऑब्वियसली हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें। हमारे लैंड पास जैसे मैंने बताया हमारे 5 स्टार्स होटल आ रहा है, उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को लेकर जहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे, जो पिलग्रिम्स लोग आएंगे वहाँ पे, सो दे विल गेट a lifestyle which is something very suitable, very luxury and also at a safe and secure time. So we have a very good huge visions जो आने वाले कुछ दिनों में आपको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज करते रहेंगे जैसे समय आते चला। बॉलीवुड सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी आपसे वहां लैंड लिया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबा और बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे जब हमारे पास अमिताभ बच्चन जी सर का हमसे कनेक्ट हुआ एंड देन उन्होंने वो इच्छा बताई हमसे कि हम भी आपके हिस्सा होना चाहते हैं आपके टाउनशिप का। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अमिताभ बच्चन ना ही के इस देश के, पूरे दुनिया के सुपरस्टार नहीं बोलूँगा मैं, वो एक ऐसे व्यक्ति है, एक रोल मॉडल है जिनको देश का बच्चा, बूढ़ा और जवान जो है उनको फॉलो करता है, उनके दिखाए हुए पद पर चलना चाहता है। तो हमारे प्राउड सी फीलिंग आती है, बहुत ही प्राउड सी फीलिंग है कि एक ऐसा आइकॉनिक स्टार जो कि सदियों में जन्म होता है जो हमारे गेटेड सोसाइटी का हिस्सा है। ग्रेट ग्रेट। अलीबाग में भी आपकी कोई डेवलपमेंट है? जी अलीबाग हमने आज से 2.5 ईयर स्टार्ट किया था एंड जब हमने ने फर्स्ट लॉन्च किया था तो आई वाज द मेंबर ऑफ द क्लोजिंग टीम वेयर वी हैव आई क्लोजली वर्क विद अलीबाग। बहुत अलीबाग का अगर आप लैंड पार्सल आज देखोगे तो एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा कनेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अगर आप मुंबई से थोड़ा सा रूबरू हो, कोलाबा से आप स्पीड बोट से 17 मिनट में मांडवा जेट्टी पहुंच जाते हो, मांडवा जेट्टी से आप 20 मिनट में हमारे लोकेशन पे पहुंच जाते हो। अच्छा, ठीक है। अलीबाग एक ऐसा प्लेस है, इट्स एन हाइड आउट प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को पीस के लिए। और हमारा जिस तरीके का लोकेशन है, इट्स अ हिली लोकेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट सी लेवल से अगर आप देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 110 मीटर्स ऊपर है हमारे लोकेशन से भी, ठीक है। आप अगर अलीबाग का एज अ लोकेशन देखेंगे तो बहुत ही आई विल से क्रीम रेक्लामा क्राउड्स आया है हमारे पास, ठीक है। किस तरह की टाउनशिप ये प्लान है, क्या क्या होंगे? सर इट्स अ गेटेड सोसाइटी, 2 क्लब्स बनने जा रहे हैं। इट्स ओनली गेटेड सोसाइटी इन एंटायर अलीबाग व्हिच विल गिव यू अल्ट्रा 5 स्टार्स लग्जरी लाइफस्टाइल्स, ओके। अब इस तरह गेटेड सोसाइटी बनने जा रहा है कि जहाँ पे एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन योर फिंगर टिप, ओके। अलीबाग की सबसे बेहतरीन जो खूबसूरती चीज जो मैं उस लोकेशन पे गया हूँ तो बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी, बहुत ही ज्यादा पीस एंड एक बहुत ही अच्छी चीज है हमारे उस लोकेशन पे जहाँ पे वाटर बॉडी का जो फ्लो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है एंड एंटायर डेवलपमेंट एंड सराउंडेड इन सच अ वे देयर विल बी अ एसेंस ऑफ वाटर। आप हमारा हाईएस्ट पीक पे अगर आप जाओगे तो यू विल सी द एंटायर अलीबाग, अ लेयर ऑफ सी, ओके। आई विल नॉट से अ सी व्यू बट इट्स अ लेयर ऑफ सी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट। if you will ask me, it is very close to me, okay, and because the kind of aura Alibag brings to the table something else, and that's the reason अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कुशाल टंडन के बारे में आपने सुना है, कृति सेनन हमारे पास। मैं अभी पूछ रहा था कि कृति मतलब अयोध्या में अमिताभ बच्चन जी, यहाँ कृति सेनन जी, तो ये क्या है मतलब? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने हमारे अलीबाग में इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखोगे लास्ट 15-20 साल की जर्नी अलीबाग की या उससे कहीं ज्यादा की, आप विजय माल्या से पकड़ लीजिए, विराट कोहली, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, बहुत ही
टॉप कौन टाइकून इंडस्ट्रीज ऑफ बॉलीवुड्स, उनका हर कहीं ना कहीं छोटा मोटा बड़ा उनका विला अलीबाग में है ही है। इस फ्लावा में विराट कोहली का अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, रोहित शर्मा ने रिसेंटली बॉट किया है, बिल्कुल सही ठीक बात है। सुहाना खान शाहरुख खान की डॉटर, उन्होंने उन्होंने भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड लिया है। तो अलीबाग आते कुछ 5 से 10 सालों में इट विल बी होम टाउन ऑफ प्रिसाइजली बॉलीवुड ओनली। ओके यस, अलीबाग बहुत लेट एक्सप्लोर हुआ है हिंदुस्तान को, और इतना ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं था, न नॉलेज नहीं था अलीबाग को एज ए लोकेशन। मुझे लगता है कि मेजर इन्वेस्टमेंट मुंबई से ही होगी अलीबाग मुंबई, में। यस, टाउन से अगर आप देखेंगे तो अगर आप साउथ मुंबई को देखेंगे तो मेजर इन्वेस्टमेंट वहीं से है, और सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री उस कनेक्शन को नहीं पकड़ पाते, बट it's one of the great township HOBL has ever had. So it is our signature development, to be very precise. Okay. Yes. So over the past years, we see a trend in Goa market, real estate trend. Yeah. आप वहाँ प्लॉट की बात कर लो, विलास की बात कर लो, कमर्शियल्स की बात कर लो, रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर लो, सब में एक डिमांड ऑल ऑफ सडन क्रिएट हुई है। मैं इसको ऑल ऑफ सडन तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गोवा इस आज गोवा नहीं बना हुआ है, राइट। गोवा लास्ट अगर आप 15-20 साल की जर्नी अगर आप देखोगे गोवा की, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है। गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है विच कम्स इन द ग्लोब टॉप 15 ट्रैवल डेस्टिनेशन, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत प्राउड की बात है, ठीक है। गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किया है वहाँ के ही गवर्नमेंट ने, कि मैक्सिमम जो जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट है वो थ्रू टूरिज्म होता है। रीजन बिहाइंड इट, अगर आप गोवा गए होंगे ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस किया होगा। गोवा आज से 8-10 साल पहले वॉज ओनली अबाउट द बीचेस, कि हम गोवा में बीचेस जाएंगे, सैक्स में एंजॉय करेंगे, ठीक है। आज गोवा में 30 to 5 स्टार होटल है, विल यू बिलीव दैट? 30 to 5 स्टार होटल्स एंड 3 स्टार 4 स्टार तो अब बहुत ही है। गोवा एक इतना 3700 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 2 एयरपोर्ट है, एक दाबोली में एयरपोर्ट, एक मोपा एयरपोर्ट जो रिसेंटली अनाउंस हुआ, ठीक है। गोवा में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, आप रेसिडेंशियल ले लीजिए, आप कमर्शियल ले लीजिए, आप लैंड में गेन कर लीजिए, एक अपने आप में वो रिटर्न्स के अलावा एक अपने आप में ही लोगों की नीड को फुलफिल करने जैसा है, बिकॉज बहुत सारे पोर्टुगीज लॉ है गोवा में, बिल्कुल सही बात, जो कि बहुत डिफिकल्ट करता है नॉन गोवन को लैंड परचेस करने में, फर्स्ट थिंग। एंड अगर आप मुझे पूछोगे, आज हर हिंदुस्तानी जिसके पास 20-25 लाख का सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, वो चाहता है मेरा गोवा में कुछ तो एटलीस्ट छोटा सा एक लैंड पार्सल, सेकंड होम गोवा में ढूंढता है। ऐसा अगर आप स्कूल के दिनों में रहोगे तो ऐसा कोई स्कूल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं है कि तू बोलेगा नहीं कि गोवा प्लान करते हैं। आप कॉलेज में जाइए, आप अभी भी बोलिए, आप बहुत सारे लोगों का प्लान होता है जो फुलफिल नहीं हो पाता। तो गोवा एक अलग ही डिमांड है, कॉर्पोरेट पार्टी हुई होती है, कॉर्पोरेट पार्टीज वहाँ होती है, लोगों को अगर 2 दिन की छुट्टी मिलेगा बहुत इजी एक्सेस है, ठीक है। सो गोवा समथिंग ब्रिंग्स, गोवा एक अलग ही ऑरा लेके आता है आपके टेबल पे। एंड स्पेशली अगर जिस जगह में हम बैठे हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, तो ह्यूज डिमांड फॉर गोवा, ह्यूज डिमांड। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं तो ऑलमोस्ट मोर देन 19 फ्लाइट्स आर फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। ये 19 फ्लाइट्स में बहुत पुराना बताओ, आज 27 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती है दिल्ली से गोवा के लिए। मोर देन 9,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली एनसीआर के लोग एज ए जीडीपी टू गोवा, ठीक है। हर तीसरे बंदे के लिए ऑलमोस्ट 82 लाख 1 लाख तक का स्क्वायर फीट लैंड अवेलेबल, अगर मैं उस तरीके से रिटर्न में बताऊँ तो, जो कि यहाँ हर 5 या 7 पे है। सो डिलाइट्स लव गोवा, ठीक है, एक अलग ही फील है उनके लिए गोवा के लिए। अक्रॉस मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि गोवा में इन्वेस्टमेंट, इससे पहले इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस गोवा में बहुत कम। मैंने जैसे बताया ना आपको कि नॉन गोवन को गोवा में लैंड परचेस करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, अपने पुराने आर्टिकल्स में, पेपर्स में पढ़े होंगे कि एक की जमीन 7-8 8 लोगों को बेचा जा रहा था वहाँ पे 2 tier 3 tier डेवलपर के साथ। आज गोवा में अगर आप डेवलपर देखेंगे, बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत ही नामचीन डेवलपर ऑफ द कंट्री, नहीं कि सिर्फ हम, और भी बहुत सारे डेवलपर्स। यस, DLF इज आल्सो प्लानिंग एंड इट्स वेरी नेक्स्ट टू आवर लोकेशन इन पंजीम ओनली। मैं लोकेशन उसको रिवील तो बिकॉज़ दे हैव आल्सो नॉट रिवील, बट जो साउंड सुनने में आया है। सो यस, जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से अयोध्या एक स्पिरिचुअल फीलिंग लेके आता है टेबल पे, गोवा जो है वो एक अलग फील लेके आता है टेबल पे, ठीक है। एंड एक अपने आप में गर्व की बात है अगर आपके पास गोवा में कुछ भी हो तो, छोटे से मोटे बढ़ाते बड़े तक। मोपा एयरपोर्ट आने से रियल एस्टेट ट्रेंड कैसे बदला है गोवा का? एग्जैक्टली, मोपा एयरपोर्ट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है गोवा को इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिज्म आल्सो, क्योंकि दाबोली में एक बहुत ही बिजिएस्ट एयरपोर्ट था, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट ट्रैवल कर, नॉट ओनली फ्रॉम द कंट्री, अगर आप देखेंगे बाहर के
आउट ऑफ कंट्री में भी गोवा का क्रेज बहुत ज्यादा है, करेक्ट। राइट। पीक सीजन में तो आपको वहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है। मोपा एयरपोर्ट आने से क्या हो गया, जो कि बाइफोकेशन हो गया नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में, ठीक है। तो आज जिनको नॉर्थ गोवा जाना होता है वो डायरेक्टली मोपा एयरपोर्ट लैंड करता है, जिन्हें साउथ गोवा जाना होता है क्योंकि बहुत सारे चर्चेस हैं ऑल ओवर गोवा सब वहीं पे वो। तो इस तरीके से बाइफोकेशन से बहुत ज्यादा आई कैन से बहुत कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत इजी हो चुका है, एंड इन टर्म्स ऑफ holding the passengers and to give them the sense of peace and security, to reach to a location as far as क्या soon इसको as ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मोपा एयरपोर्ट आने के बाद डिमांड बढ़ी है? ये सब बोल सकते हो सर, क्योंकि किसी भी स्टेट में एक नया एयरपोर्ट का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, राइट। एक क्योंकि उस जगह में डिमांड होता है इसीलिए एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी आती है, अदरवाइज एक एयरपोर्ट का आना ही अपने आप में सिग्नल है कि आप आग बंद करके उसके नियर बाय लोकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का फिर उससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मुहिम जुड़ जाता है। तो बहुत कम लोग समझते हैं ये सब चीजें, ठीक है। बट यस, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज टेक अ डिसीजन ऑन अ राइट वे ऑन एन राइट टाइम। ओके। हाउस ऑफ अभिनंदन लोगा के 3 प्रोजेक्ट है गोवा में। Yes. फर्स्ट वन इज इंपीरियल गोवा, राइट, सेकंड वन इज गल्फ गोवा, गल्फ Yes. ऑफ गोवा एंड वन गोवा। या so there are total 3 projects: Imperial Goa, Gulf of Goa and One Goa. One Goa. तो इंपीरियल गोवा इज डिलीवर्ड, Imperial Goa is our delivered तो project. उसके बारे में थोड़ा बताया हमें। Yes, वो किस तरह का प्रोजेक्ट था, कब डिलीवर्ड किया, कब लॉन्च या किया? तो 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था इंपीरियल गोवा की जर्नी, ठीक है। एंड बहुत ही हमारे लिए भी बहुत ही नयापन था वो। Is your गोवा में first पहला one in लैंड Goa? पार्सल था हमारा, यस। एंड बहुत बहुत क्विकली सेल हो गया था वो। ये कब लॉन्च किया था आपने? ये हमने टू बी वेरी प्रिसाइज मैं ये तो नहीं बता सकता, 2.5 years हो गए हमने इसको ठीक है। लॉन्च किया था। एंड वी हैव डिलीवर्ड लास्ट मंथ, वी हैव डिलीवर्ड दिस प्रोजेक्ट। एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। आप अगर जाओगे हमारे प्रोजेक्ट में, आप शायद से आपको गोवा में ऐसा क्रिएटिव सोसाइटी मिलेगा जो कि इतनी Okay. ब्यूटी और इतनी पीस लेके आती है। एग्जैक्ट है कहाँ ये? ये एग्जैक्टली पंजिम दाबोलिम एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पे आप पंजिम पकड़ सकते हो इसे। समुंदर से 7 to 8 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रॉपर्टी कितनी अप्रिशिएट की? कब आपने जब Sir, लॉन्च हमने किया था तब इसको- क्या प्राइस था और अभी क्या है? हमने जब इसको लॉन्च किया था इट वाज क्लोज टू 1.3 to 1.4 CR, एंड नाउ कुछ इन्वेंट्रीज हमारी अवेलेबल है उसमें। जितने भी RTMI चाहिए मैं आपके माध्यम से अपने इन्वेस्टर्स के पास लेके, आपके कस्टमर्स तक लेके जाना चाहूंगा जी। कि 9 मेरे पास अभी भी उस इंपीरियल गोवा में 9 प्लॉट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सोचा ही था कि हम जब रेडी टू मूव इन करेंगे उस समय से रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे। So we have 4 plots for commercials and 5 plots for residential. So if someone is interested, for RTMA ready to move in project, गोवा में आपको इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, I can proudly say that. करेक्ट। एंड गल्फ ऑफ गोवा? Gulf of Goa again, by looking such a good responses, and as a company, we did not cater the expectation of the people because we have got a huge demand. Okay, इतना डिमांड था, so we have think why not close to the same, we'll come up with one project. Then we have come up with the idea of Gulf of Goa, again a similar kind of project, a gated society of 25 acre of land parcel with ultra luxury lifestyles, again close to 180 to 200 plots, and that is also has been टोटल sold लैंड पार्सल इज 25 acres. 25 Yes, acres. it's been sold out. It is sold out again? No, it's sold out. Yes, it's 6 to 8 weeks we have sold out that, and then I think so by the end of the December or by the mid of 2025 we're going to deliver that as well. Now your new launch is One Goa. Oh my God! Now this is the craze, Like if I will tell you about the data of One Goa now, not the idea behind One Goa, right? So Gulf of Goa and Imperial Goa you can consider a similar kind of project. Our One Goa, it's something, it's in volume. Okay, we wanted to create a one township. Okay. So 130 plus acre of land parcel. Will you believe that 130 acre plus land parcel In Goa. in Goa itself? Okay, so it's next to impossible कि आपको इतना बड़ा लैंड पार्सल एक वॉल्यूम एक साथ मिले इतना। So अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। बट yes, somehow we cater, thanks to God also. God was very kindful in this journey with us, and बहुत ही बिग चैलेंज था कंपनी के लिए इतने बड़े लैंड पार्सल को इस तरीके से लोगों के सामने लेके जाना। And yes, now we have done with the first phase, close to 1500 applications, 800 plus inventory has been sold. Within 8 weeks of span, 600 crores of business, and unbelievable. ये पूरी टाउनशिप किस तरह से प्लान की गई है? सर ये पूरी की पूरी टाउनशिप अगर आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम होने जा रही है। अगर मैं आपको वन बाय वन अगर मैं इसकी यूएसपी बताऊँ, प्लीज। यस, तो अगर आपने इबिजा का नाम सुना होगा, इबिजा एक आइलैंड है स्पेन में, नोन फॉर इट्स पार्टीज, सो वी ब्रिंगिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कॉन्सेप्ट उसी तरीके की पार्टीज मेड आइस। यस, गोवा को देखते हुए, गोवा इज a very large volume. It's all about its parties and clubs and nightlife, right? So we ensure this, and
मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि व्हेन वी विल गोइंग टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ दिस, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड क्रेजेस्ट पार्टी विल बी इन माय डेवलपमेंट फॉर श्योर। सेकंड, एक ऐसी गेटेड सोसाइटी बनने जा रही है जिसमें मैन मेड बीच का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हम ऐसे पहले डेवलपर है जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हिंदुस्तान से बाहर है, हिंदुस्तान से बाहर तो दुबई और सिंगापुर में दुबई, आपको सिंगापुर, मिलेगा। correct. बाकी फर्स्ट टाइम एंटायर कंट्री विल गोइंग टू एक्सपीरियंस अ मैन मेड बीच इन अ गेटेड सोसाइटी दैट इज ऑल्सो ऑफ 2.5 एकड़। अगर मैं आपको 2.5 एकड़ का वॉल्यूम या फिर अंडरस्टैंडिंग दूं, अगर आप कहीं भी मुंबई जू बीच गए होंगे, मुंबई जू बीच का जो एक्सेसिबल एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा है, जो एक्सेसिबल एरिया है उससे डबल है हमारा मैन मेड बीच विद प्रॉपर वाइट सैंड। ओह माय गॉड। ठीक है, सो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इस तरीके के लाइफस्टाइल को हमारे लोगों के बीच में लेके आ पा रहे हैं। उसी तरीके का रेस्पॉन्स भी हमें मिला फेस 1 में। द मोमेंट वी टेल अस कि वी आर ब्रिंगिंग दिस ऑन द टेबल। कितने फेज में प्लान है ये? सर ये फिलहाल तो हमारा 2 फेज में प्लान है। दिस इज अपने सेकंड फेज लेके आ रहे हैं। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 हमारा वी आर इन अ प्री लॉन्च स्टेज। हमारा लॉन्च इसको मिड ऑफ अगस्त में हम इसको लॉन्च करेंगे। फेज 1 पे रेट क्या था, फेज 2 पे क्या रेट है? सो फेज 1 में हमने इसको ओपन किया था 1537 स्क्वायर फीट 73.53 लाख। ठीक है। फेज 2 का जो हमारा एंकर प्राइस अभी चल रहा है सेम का, इट्स 99 लाख रुपीस। बट वी ऑलवेज हैव अ सरप्राइज फॉर आवर कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर व्हिच विल ब्रिंग ऑन द टेबल व्हेन वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट। एंड ऑब्वियसली जिन्होंने हमसे प्री लॉन्च कस्टमर जो हम पे इंटरेस्ट दिखाया है, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया है बाय शोइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट of 45,000, which is again 100% refundable amount. For my pre-launch customers, obviously there will be some monetary benefit will be there. When we launch, there will be a surprise elements of the pricing will comes that if you will ask me now, I mean I also don't have idea that we're going to reveal in the launch. So obviously pre-launch customer will get some sort of benefits of it. Great. Where exactly this project is? It's in Bicholim in North Goa. Mopa airport से 45 minutes की दूरी पे है। NH1 जो बॉम्बे गोवा हाईवे कनेक्ट करेगा, वेरी क्लोज टू हार्डली 2 to 3 किलोमीटर ऑफ डिफरेंस। ठीक है। जो आउटर पार्ट ऑफ रोड है 20 मीटर वाइड रोड का, उस पे ऑलरेडी काम, इट्स ब्लैक कैप रोड नाउ, ऑलरेडी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इट्स एन डेवलपिंग स्टेज। बिचोलिम का अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही आई एम श्योर लोकेशन के एडवांटेज मिलेगा इस प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा मिलेगा सर, क्योंकि उस तरीके का लोकेशन है बिचोलिम जहाँ से बहुत ही जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लेस है, दीवार आइलैंड पकड़ लीजिए आप, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पकड़ लीजिए आप, और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जो हमसे सिर्फ 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमसे सिर्फ 40 मिनट की दूरी पे है, जो कि जो लोग जानते नहीं है, सिर्फ गोवा को बीचेस के नाम पे जानते हैं। अगर आप बीच सिर्फ 10% हिस्सा है गोवा का, बाकी 90% अगर आप गोवा सराउंड घूमोगे तो बिचोलिम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। And just to add one more thing, I'm not sure how much committed it is, but recently the article has also came कि बिचोलिम में ही गोवा का सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है गोवा में एंड ऑलमोस्ट कैपेसिटी ऑफ 32,000। तो गोवा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है बिचोलिम जैसे लोग। और यहाँ पे प्रोजेक्ट कितना दूर है? ये हमारे प्रोजेक्ट से मैं प्रिसाइजली नहीं बता सकता क्योंकि उनका लोकेशन नहीं डिसाइड। बिचोलिम में बहुत बड़ा है, बट अगर बिचोलिम में कहीं भी आता है तो हमसे 10 मिनट की दूरी पे होगा वो। वो तो पास में ही है, क्योंकि हमारा खुद का ही टाउनशिप ऑलमोस्ट 130 प्लस एकड़ है, उसके आगे हमारा विजन बहुत बड़ा है जो कि मैं आज नहीं रिवील कर सकता आपके सामने, बट ये विजन इज क्वाइट बिग ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स बिचोलिम। एंड एक ऐसे स्टेज पे लेके जाएंगे हम 3 to 5 years में थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बिचोलिम में। जिन्होंने आज हमसे इन्वेस्ट करके रखा है इस प्रोजेक्ट में, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक इन कमिंग ईयर्स इट विल बी लाइक गोल्ड फॉर देम। बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। यस यस, जब हमने वन गोवा ऑब्वियसली वन गोवा जब हमने इसको लॉन्च करने की सोचा था हमने, तो वी वांटेड सम न्यू एंड फ्रेश फेस टू द टू I will not say to promote, to associate with us. Correct. And thank you to Tripti Dimri. She has agreed to us and she has played a significant role towards our success. Correct. Basically, you are selling Goa from Mumbai also. Yes. Delhi also. Yes. दोनों के कस्टमर बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंजेस आप देखते हो? See, इसका अगर मैं ऑनेस्ट आंसर दूं तो yes, दिल्ली NCR people they love Goa. ओके, जो क्रेज है उनका गोवा को लेके वो शायद से आपको किसी भी हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में मिले आपको। डिफरेंस ये है कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुंबई में सी का फैसिनेशन इतना नहीं है लोगों में, ऑलरेडी है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास है, हम बचपन से। अब आप मुंबई के किसी भी कोने में हो, आप आधे घंटे में समुद्र पहुंच सकते हो, चाहे आप सेंट्रल में रहो, चाहे आप वेस्टर्न में रहो, चाहे आप नवी मुंबई में रहो, तो इतना कनेक्टेड है, राइट। बट यस,
कस्टमर्स जो है मुंबई के भी उनको भी गोवा जाना बहुत पसंद है, दिल्ली एनसीआर तो वहीं जाता है। ओके, सो बहुत ज्यादा ये डिफरेंस नहीं है, बस एक वही एक सी फैक्टर आ जाता है जहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोगों को दे आर मोर फैसिनेशन टुवर्ड्स सी। अगर आप 60-40, मैं तो 70-30 करूंगा, 60-40 भी नहीं। एंड ऑल्सो मुंबई पीपल इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं वहीं से तो दे आर इनटू मोर इनटू रेसिडेंशियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। तो लैंड को इतना मुंबई पीपल वॉल्यूम में देखेंगे तो कंपैरिजन में नहीं समझ सकते इन्वेस्टमेंट को, बहुत कम, ठीक है। बट नॉर्थ में, मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, आप एंटायर नॉर्थ को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लैंड, दे अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा लैंड का अपने पोर्टफोलियो में रहना इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग में भी बोलूँ और काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बोलूँ तो नॉर्थ पीपल दे आर मोर इनटू इन्वेस्टमेंट टू द लैंड। रेशियो में समझो तो क्या रेशियो है सर? आप रेशियो में अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो आई कैन, वैसे तो मुझे पॉडकास्ट में अच्छा बताने के लिए तो 40-60 बोलना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट शुड बी रेशियो ऑफ 30-70। 30 फ्रॉम मुंबई एंड 70 फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। तो रेशियो ज्यादा है फिर, बहुत ज्यादा है सर। और अगर आप मेरा पुराना डेटा पे निकाल के देखोगे वन गोवा के लिए, 70, आई थिंक सो 65-70% ऑफ कस्टमर्स आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर ओनली। Okay. Either they are staying over here or they are staying out of the, but their ethnicity are from Delhi NCR only, or from the north you can consider। तो बहुत ही ज़्यादा उसमें है, मार्जिन में देखेंगे तो डिफरेंस है। यहाँ के लोग ज़्यादा समझते हैं लैंड को एज एन अपॉर्चुनिटी, लैंड एज एन एसेट, लैंड एज एन वैल्यू, बहुत ज़्यादा। और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इसी तरीके का चलता है, ज़मीन रहे, अपना खुद का विला हो। तो बेसिकली कोई लैंड जो भी इन्वेस्टमेंट करता है एप्रिसिएशन के लिए करता है। तो वन गोवा में अगर कोई लैंड आप हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के थ्रू लेता है तो एप्रिसिएशन के क्या चांसेस हैं? आप कितने टाइम पे कस्टमर एग्जिट ले सकता है अपने प्रॉपर्टी से, अगर एग्जिट लेना चाहो तो? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको तो कुछ भी नंबर बोल सकता हूँ, बट अगर आप किसी भी नंबर को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट? तो मैं आपको इसी को इंपीरियल गोवा से रिलेट करूंगा, जब लोगों ने 1.3 1.4 सीआर में, बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट लॉन्च तो प्रिसाइज नंबर नहीं बता सकता, इट वाज क्लोज टू दैट। आज अगर हम वहाँ पे खरीदने जा रहे हो तो इट इज ऑलमोस्ट 2.3 सीआर से क्लोज है, सेम स्क्वायर फीट। इतना अप्रिसिएशन मिल गया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अप्रिसिएशन हियर ऑल्सो, जहाँ पे आज अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में व्हेन वी डिलीवर दिस प्रोजेक्ट यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 1.5x ऑफ ग्रोथ। मैं बहुत ही मिनिमम साइड में बोल रहा हूँ आपको, यू कैन सी द सिग्निफिकेंट ग्रोथ बिकॉज और रेयर और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होने जा रही है कंट्री में। सो in terms of returns, yes, it will give you a very good returns, to be very sure, but more than the returns it will be your most pleasant getaway home, you know, इस तरीके का लोकेशंस है। सो मैं सभी आपके जितने भी दर्शक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि ऑब्वियसली एक लैंड जब आप खरीदते हो तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको देख ही लेते हो, बट इट विल बी मोर टू होम टू यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहते हो जो गोवा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं? मैं सजेशन है, एडवाइस तो मैं क्या ही दे सकता हूँ, बट यस, अगर आप गोवा में जमीन अगर आप देख रहे हो तो नो अदर प्लेस देन एचओबीएल। ओके, देयर इज मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। ओके, अगर मैं इस डेवलपमेंट की भी बात करूँ तो हम ये समझते हैं कि जब एक कस्टमर जमीन खरीदता है तो बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं उनके साथ, ठीक है। और उसी इमोशंस को और उसी उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए एचओबीएल हमेशा वो प्रयास करता है कि हम हमारे ना कि सिर्फ एज अ कस्टमर के तौर पे देखें, बट एज अ फैमिली मेंबर के तौर पे उन्हें देखें एंड उनके नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड इसीलिए हमने इस तरीके का प्रोसेस बनाया है कि अगर आप अगर आप सेल्फ फंडिंग नहीं कर सकते हो तो यू हैव अ बैंक प्रोविजन। हमारा टाई अप है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई बैंक के साथ। पोस्ट 25% यू कैन अवेल अप टू 75% ऑन एग्रीमेंट लोन। पहले तो नहीं होता, अब तो हो रहा है। वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने हमने स्टार्ट भी किया था प्लॉट पे लोन देना, ठीक है, थ्रू आर इजी गेटवे ऑल्सो। तो यस, अगर आप सोच रहे हो कि एचओबीएल में हमें बिचोलिम में एक लैंड पार्सल हमें खरीदना है तो नो अदर प्लेस देन एचओबीएल, ठीक है। यू जस्ट लेट अस नो योर नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड ऑब्वियसली इन आवर बेस्ट कैपेसिटी वी विल गोइंग टू केटर दैट। ओके धर्म जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू।